How are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 4, that is more on PowerPoint 2016. So let's begin with this lesson. Here in this lesson we are going to study about editing text. Then we are going to study about how to format text. So let's begin. So introduction. We have learned the basics of MS PowerPoint in the previous class. In your previous classes, you have already learned about MS PowerPoint. So now let's discuss more about PowerPoint in this chapter. In this, we are going to study about how to edit text. So most presentation requires some editing. कुछ presentation को क्या चाहिए होती है? कुछ editing चाहिए होती है. After entering text, you may need to go back. आपको मतलब वापस जाना होता है, कुछ changes करने पड़ते हैं, like entering additional text or revising existing text. So PowerPoint makes it easy to edit. आप easily edit कर पाते हो, copy कर पाते हो, move कर पाते हो, delete कर पाते हो text को, as well as undo, redo actions. So here, to select all the text in the text box, आपको क्या करना पड़ता है? आप type Ctrl+A सारे text को select करने के लिए आप कर सकते हो press. So now copying and moving text, how to copy and move the text. While editing a presentation, you may want to duplicate text. आपको क्या करना पड़ता है? Duplicate करते हो आप कई बहुत बार text को to another location or remove text from its original location. या फिर आप क्या कर देते हो? Text को remove कर देते हो उसके original location से and place it in a new location. To copy or move text, what do you do? In the slide pane, select करना होता है आपको text को that you want to copy or move. जो आपको copy करना होता है, move करना होता है. On the home tab of the ribbon in the clipboard group, do one of the following. आपको एक चीज करनी होती है. टू कॉपी टेक्स्ट क्लिक करना होता है आपको कॉपी बटन पे. टू मूव टेक्स्ट आपको क्लिक करना होता है कट बटन पे. सो क्लिक वेयर यू वांट टू पेस्ट और फिर वहाँ पे कहाँ पे क्लिक करना होता है? जहाँ पे आपको टेक्स्ट को पेस्ट करना है या फिर कट करना है. ऑन होम टैब ऑफ द रिबन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप आपको क्या करना होता है? क्लिक करना होता है पेस्ट बटन पे. नाउ रिप्लेसिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट. While editing a presentation, you can easily replace or delete the text on a slide. आप easily क्या कर पाते हो? Replace कर पाते हो, delete कर पाते हो text को अपनी slide से. To replace text in the slide पे select करना होता है protect that you want to replace, जो आपको replace करना है. Enter करना होता है new text. To delete text आपको क्या करना होता है? In the slide पे select करना होता है text and that you want to delete. फिर आपको क्या करना होता है? Delete की को directly press करना होता है, आपका text delete हो जाएगा. Now undo and redo actions. Whenever you make a mistake, you can easily reverse it. जब भी आपसे कोई mistake होती है आप उसको easily reverse कर सकते हो undo command को press करके. So after you have undone one or more action, the redo command becomes available. जब आप एक से ज़्यादा action गलती से undo कर देते हो आप redo command भी होता है available, उसे भी press कर सकते हो. That allows you to restore the undone action. वो क्या करता है? Undone actions को restore कर देता है. Now to undo an action, on the quick access toolbar click करना होता है आपको undo बटन पे Ctrl+Z कीज पे. Now redo an action के लिए क्या करना होता है? To redo an action on the quick access toolbar click करना होता है आपको redo बटन पे या फिर press करनी होती है Ctrl+Y कीज. Now to repeat an action, repeat is different from redo. ये थोड़ा different होता है redo से क्योंकि repeats your last command. ये क्या करता है? repeat कर देता है आपकी last command action को अगर possible होता है तो. For example, let's say you want to delete several slides कि आपको several slides delete करनी है. Rather than deleting each slide individually by pressing the delete key repeatedly, you can delete one slide. आप एक slide को delete कर सकते हो. आप repeat use कर सकते हो repeat command को delete करने के लिए other actions को. To repeat an action, do the following. क्लिक करना होता है आपको रिपीट बटन पे ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार या फिर आप डायरेक्टली क्या प्रेस कर सकते हो? F4 भी प्रेस कर सकते हो. नाउ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट. अब टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करते हैं? ऑल्दो पावरपॉइंट लेआउट्स एंड थीम प्रोवाइड प्री फॉर्मेटेड स्टाइल्स. ये क्या प्रोवाइड करता है? आपको प्री फॉर्मेटेड स्टाइल्स प्रोवाइड करता है टेक्स्ट के लिए. यू कैन मैनुअली चेंज द फॉर्मेटिंग. आप मैनुअली चेंज कर सकते हो फॉर्मेटिंग को ऑफ टेक्स्ट टू मीट योर नीड्स. फॉर एग्जाम्पल यू मे वांट टू बोल्ड a word. आपको क्या करना होता है? बोल्ड करना होता है word or a phrase to emphasize key points. The font and paragraph group on the home tab of the ribbon contain the most commonly used text formatting commands. इसमें क्या होता है? commonly use होने वाले आपके text formatting commands होते हैं. Now changing the font. अब font change कैसे करते हैं? अब font is a typeface. ये क्या होता है? एक तरीके का typeface होता है. This style of lettering कि आपका जो जिस text को आप जो type कर रहे हो वो किस form में आएगा.
So the default font used in a presentation is determined by the theme. जो default font use होता है आपकी presentation को किससे determine होता है? Presentation की theme से determine होता है जो आपने apply किया अपनी presentation में. Now fonts can greatly affect the readability. जो fonts होता है वो readability को affect करता है and appeal of the presentation की appearance कैसी आपकी presentation की उसको भी आपका affect करता है. So choose the right ones is very important. जो आप सही choose करो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. नाउ टू चेंज द फॉन्ट, अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो क्या करना चाहिए? द स्लाइड पेन सेलेक्ट करना होता है टेक्स्ट दैट यू वांट टू फॉर्मेट, जो आपको फॉर्मेट करना होता है. ऑन अ होम टैब ऑफ द रिबन इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक करना होता है आपको एरो में फॉन्ट बॉक्स एंड सेलेक्ट करना होता है डिजायर्ड फॉन्ट फ्रॉम द लिस्ट. जो डिजायर्ड फॉन्ट होगा अपनी लिस्ट से उसको सिलेक्ट करना है. नाउ चेंजिंग द फॉन्ट साइज. अब फॉन्ट साइज को कैसे चेंज करते हैं? ईच थीम हैज अ स्पेसिफाइड फॉन्ट साइज. हर थीम का एक अपना स्पेसिफाइड फॉन्ट साइज होता है. दैट इज यूज फॉर हेडिंग्स. जो किस लिए यूज होता है? हेडिंग्स के लिए, बॉडी टेक्स्ट के लिए यूज होता है विद डिफरेंट साइजेस टिपिकली यूज फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ बुलेटेड लिस्ट. द साइज ऑफ द टेक्स्ट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज द चूजन फॉन्ट. जो साइज होता है आपका टेक्स्ट का वो इतना इंपॉर्टेंट होता है जैसे आपके चूजन फॉन्ट्स की तरह आपकी प्रेजेंटेशन में. फॉर एग्जाम्पल इफ द टेक्स्ट इज टू स्मॉल, अगर आपका टेक्स्ट बहुत छोटा है, इजी रीडेबल नहीं होगा, उसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं आएगी. The people at the back of room may not be able to follow along. जो people पीछे बैठे होंगे वो देख ही नहीं पाएंगे आपके टेक्स्ट को easily. Now to change the font size, अगर आपको font size change करना है तो उसके लिए क्या करना होता है? आपको पहले आपको select करना है अपना text. Then in the slide में select the text that you want to format. Then आपको home tab पे जाना है. Then in the font groups में आपको क्या करना है? Size font box का आपका available हो जाएगा. आपको वहाँ से size select करना है अच्छी रीडेबिलिटी करने के लिए. जो आपका साइज कैसा होगा वो अपीयर होने लगेगा जब भी आप क्लिक करोगे. तो नाउ चेंजिंग द फॉन्ट कलर. फॉन्ट कलर कैसे चेंज करते हैं? कलर कैन बी यूज्ड टू एम्फसाइज इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इन अ प्रेजेंटेशन. व्हेन चूजिंग अ कलर मेक श्योर दैट देयर इज एनफ कंट्रास्ट. जब आप कलर चूज कर रहे हो कि मेक श्योर करोगे वहाँ पे एनफ कंट्रास्ट रहे बिटवीन द टेक्स्ट एंड इट्स बैकग्राउंड टू मेक द प्रेजेंटेशन ईजियर टू रीड. टू चेंज द फॉन्ट कलर इन स्लाइड पेन सेलेक्ट करना होता है आपको टेक्स्ट जो आपको दैट यू वांट टू फॉर्मेट, जो आपको फॉर्मेट करना है. देन क्लिक करना है आपको होम टैब पे अपने रिबन के. इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक करना होता है फॉन्ट कलर बटन पे अप्लाई करने के लिए मोस्ट रिसेंटली यूज कलर्स को, और क्लिक द एरो ऑन द फॉन्ट कलर बटन, या फिर आप एरो पे भी क्लिक कर सकते हो फॉन्ट कलर बटन पे एंड सेलेक्ट अ डिफरेंट कलर फ्रॉम द कलर पैलेट. आप डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर सकते हो अपने कलर पैलेट से. अप्लाई फॉन्ट साइज एंड इफेक्ट्स. You can emphasize text by applying one or more font style. आप emphasize कर सकते हो अपने टेक्स्ट को अप्लाई करके एक से या एक से ज्यादा font size and effects. Font styles include attributes. इसमें attributes होते हैं जैसे आपको bold हो गया, italic हो गया, और effects में क्या आता है आपके कुछ special enhancement हो जाती है आपके टेक्स्ट की, like shadow हो गया, strike through हो गया, जो strike through वाला आपके टेक्स्ट से लाइन जारी होती है. To apply a font style or effect, follow the given steps. In the slide pane select करना होता है आपको टेक्स्ट जो आपको फॉर्मेट करना है. On the home tab of the ribbon in the font group, do any of the following. कोई भी चीज आप कर सकते हो इनमें से. अब आप क्लिक कर दो बोल्ड बटन पे, उसे बोल्ड करने के लिए इटैलिक बटन पे क्लिक करो, इटैलिसाइज करने के लिए अंडरलाइन पे बटन पे भी क्लिक कर सकते हो, अंडरलाइन करने के लिए टेक्स्ट को टेक्स्ट शेडो बटन पे क्लिक कर सकते हो, ऐड करने के लिए शेडो अपने टेक्स्ट पे. क्लिक द स्ट्राइक थ्रू बटन. आप स्ट्राइक थ्रू बटन पे क्लिक कर सकते हो, ऐड करने के लाइन थ्रू द टेक्स्ट. द बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट एंड शेडो एंड स्ट्राइक थ्रू बटन्स आर टॉगल्स. ये टॉगल्स होते हैं आपके. नाउ चेंजिंग द अलाइनमेंट, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, ये जो अलाइनमेंट्स होते हैं आपके. सो यू कैन कंट्रोल हाउ द टेक्स्ट विद इन अ प्लेस होल्डर बाय एडजस्टिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट. आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट को चूज करके आप कर सकते हो टेक्स्ट को अपने प्लेस होल्डर में एडजस्ट. टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स. इन द स्लाइड पेन सेलेक्ट करना होता है टेक्स्ट जो आपको फॉर्मेट करना है. ऑन द होम टैब ऑफ द रिबन इन द पैराग्राफ ग्रुप आपको कोई भी एक चीज करनी है, आपको क्लिक करना है अलाइन लेफ्ट बटन पे टू अलाइन टेक्स्ट अगेंस्ट द लेफ्ट एज ऑफ द प्लेस होल्डर. लेफ्ट एज से प्लेस होल्डर के अलाइन करने के लिए आपको अलाइन लेफ्ट बटन पे क्लिक करना है. क्लिक द सेंटर बटन टू अलाइन इन द मिडल ऑफ द प्लेस होल्डर. सेंटर बटन पे क्लिक कर दो अलाइन करने के लिए मिडल में प्लेस होल्डर के. क्लिक द अलाइन राइट बटन टू अलाइन अगेंस्ट द राइट एज. अलाइन राइट बटन पे क्लिक कर दो अलाइन करने के लिए राइट एज ऑफ द प्लेस होल्डर पे. क्लिक द जस्टिफाई बटन. आप जस्टिफाई बटन पे भी क्लिक कर सकते हो अलाइन करने के लिए टेक्स्ट को अगेंस्ट बोथ लेफ्ट एंड राइट एजेस ऑफ द प्लेस होल्डर. पावरपॉइंट एड स्पेस बिटवीन वर्ड्स. पावरपॉइंट क्या करता है? स्पेस ऐड कर देता है वर्ड्स के बीच में फिल करने के लिए लाइन को. नाउ क्लिक द अलाइन टेक्स्ट बटन. आप अलाइन टेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, देन क्लिक करना है आपको टॉप, मिडल या फिर बॉटम पे अलाइन करने के लिए अपने अकॉर्डिंग
अगर टॉप पे करना है तो टॉप पे कर दो, मिडल में करना है तो मिडल में कर दो, बॉटम में करना है तो आपका टेक्स्ट बॉटम में आ जाएगा पेज के। नाउ चेंजिंग द लाइन स्पेसिंग को कैसे चेंज करते हैं? यू कैन कंट्रोल हाउ मच स्पेस अपीयर्स बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट बाय चेंजिंग द लाइन स्पेसिंग। आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो कि कितना स्पेस है आपकी लाइन्स के बीच में, और लाइन स्पेसिंग को चेंज करके। सो टू चेंज द लाइन स्पेसिंग ऑफ टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप। आपको इन द स्लाइड पेन आपको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट जो आपको फॉर्मेट करना है। ऑन द होम टैब ऑफ द रिबन इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक करना, आपको लाइन स्पेसिंग बटन पे सेलेक्ट करना है डिजायर्ड स्पेसिंग फ्रॉम द मेन्यू। जो डिजायर्ड स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ चेंजिंग द इंडेंटेशन। बॉडी टेक्स्ट ऑन अ स्लाइड टिपिकली कंटेन्स बुलेटेड टेक्स्ट। इसमें बुलेटेड टेक्स्ट होता है जो क्या करता है, इंडेंट विच यू कैन इंडेंट टू क्रिएट लेवल, जो आप इंडेंट कर सकते हो क्रिएट करने के लिए लेवल्स को। लाइक टू चेंज द इंडेंटेशन ऑफ टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप। आपको क्या करना है, अपने स्लाइड पेन पे जाना है, देन स्लाइड सेलेक्ट करना, आपको टेक्स्ट जो आपको फॉर्मेट करना है। देन इन द ऑन द होम टैब ऑफ द रिबन इन द पैराग्राफ ग्रुप आपको क्लिक करना होता है इंक्रीज लिस्ट लेवल बटन पे या फिर डिक्रीज लिस्ट लेवल बटन पे। नाउ क्रिएटेड बुलेटेड एंड नंबर लिस्ट। सम प्लेस होल्डर्स ऑटोमेटिकली फॉर्मेट टेक्स्ट। कुछ प्लेस होल्डर्स क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर देते हैं टेक्स्ट को आपके बुलेटेड लिस्ट में। यू कैन ऑल्सो एड बुलेट्स एंड नंबर्स टू टेक्स्ट मैनुअली। आप बुलेट्स और नंबर्स मैनुअली एड कर सकते हो। सो एज वेल एज चेंज द बुलेट और नंबर स्टाइल। आप क्या कर सकते हो, बुलेट और नंबर स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो जो आपने अप्लाई किया अपनी लिस्ट में। टू एड बुलेट्स और नंबर टू टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। इन द स्लाइड पेन आपको सिलेक्ट करना होता है टेक्स्ट विच यू वांट टू एड बुलेट, जिसमें आपको बुलेट सेट करनी है या फिर नंबर सेट करने हैं। ऑन होम टैब ऑफ द रिबन इन द पैराग्राफ ग्रुप आपको क्लिक करना होता है बुलेट बटन पर अप्लाई करने के लिए डिफॉल्ट बुलेट स्टाइल को नंबरिंग बटन, और द नंबरिंग बटन पे आप अप्लाई कर सकते हो नंबर स्टाइल को अप्लाई करने के लिए। फिर अगर आप नंबर पे करोगे तो नंबर्स में आ जाएगा, अगर बुलेट पे करोगे तो बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे। तो चेंज द बुलेट और नंबर स्टाइल फॉलो द गिवन स्टेप्स। आपको स्लाइड पेन में जाना है, सिलेक्ट करना है बुलेटेड या फिर नंबर लिस्ट को दैट यू वांट टू चेंज, जो आपको चेंज करना है। ऑन द होम टैब द रिबन ऑफ द रिबन आपको पैराग्राफ ग्रुप में जाना है, क्लिक करना है एरो पे जो आपके बुलेट्स और नंबरिंग बटन्स में अवेलेबल है, ये एरो, एंड सेलेक्ट करना है डिजायर्ड स्टाइल। तो भी आपका डिजायर्ड स्टाइल है उसको सेलेक्ट कर लेना है। नाउ क्लियरिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर कैसे करते हैं? यू कैन क्लियर ऑल मैनुअल फॉर्मेटिंग। जितनी भी फॉर्मेटिंग करी है आप सबको क्लियर कर सकते हो, जैसे आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड कलर जो भी किया सबको क्लियर कर सकते हो। कैसे? फ्रॉम द टेक्स्ट टू रिस्टोर डिफॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल में। टू क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फॉलो द स्टेप्स। फर्स्ट आपको क्या करना है, स्लाइड पेन में जाना है, देन सेलेक्ट करना है टेक्स्ट जो आपको फॉर्मेट करना है, जो आपको फॉर्मेटिंग की है उसको क्लियर करने के लिए। ऑन द होम टैब ऑफ द रिबन इन फॉन्ट ग्रुप आपको क्लिक करना है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बटन्स पे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।